सो जेई मेन 22 January 2026 मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. यू आर गिवन टू disk having same moment of inertia. Okay, thickness is given, same density. Okay, so radius का ratio is also given, thickness का ratio पूछा है. So as you know that moment of inertia of disk about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane is half mr square. So now you have to break here mass is simply, as you know, that volume into density. So this is r square, and you know that volume is cross section area pi r square, and pi r square into thickness into rho r square. So here moment of inertia now comes out to be this much, and they are saying that both disks have a same moment of inertia. So I constant means r raised to the power हो गया यहाँ से 4 into t. So this will be constant. So t is inversely proportional to r raised to the power 4, or you can say t1 upon t2, that is equal to r2 upon r1 raised to the power 4. Here you are given r1 upon r2, that is 1 upon 2. So reciprocal of this will be 2 upon 1 raised to the power 4. So it is now 16. So 16 will be your answer, and it will be option number 2. Option number 2 is the correct one. Okay, so option 2 is 16. So let us move on to the next question. This is question belongs to series RLC circuit. Okay, voltage of battery is 10 volt, resistance and inductance are also given. Energy stored in inductor when current reaches 1 upon E. So this E, as you know, pi is 3.14. वैसे E की वैल्यू होती है, इसको याद रखिए 2.72. ठीक है. सो यहाँ से जो करंट है आपको वो दिया है 1 upon E times I naught. Okay, so it is now I simply I naught upon E. Okay, so I naught यहाँ से आ जाएगा V upon R. So V is given 10 volt battery, resistance is 10, so it is 1 ampere, and as you know that energy stored in inductor is half L I naught square, half L I square. Okay, so it is L by 2. Okay, and in place of right you will write this, so it is I naught square upon E square. Okay, so let me now put the values. L is 10 millihenry, means 10 into 10 raised to the power minus 3 upon 2. I naught is simply 1 ampere, so it is 1 square upon E square means 2.72. as I told you that value of E is this much, so it is square now. So you can solve it. So it is 5. Okay, so it is now 5 into 10 raised to the power minus 3 upon 2.72 into 2.72. So when you solve it, you can solve it. It is a simple calculation, and your answer will be this 0.67 into 10 raised to the power minus 3 joule. So it is 0.67 into 10 minus 3 in your milli, so millijoule. So option 1 will be the correct option. Okay, so let me move on to the next question. Question belongs to potentiometer. गलत लिखा है यहाँ पे. It will be meter base. Okay, so it is meter base. So as you know that in case of meter base you are given these two resistances. This is basically your R and this is your S. Okay, and if 16 ohm is connected in parallel to R2, okay, the null point is at 50. शुरू में नल पॉइंट 40 पे है. ओके, तो यदि यहाँ से यहाँ तक 40 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, ये 100 minus 40 है ना. सो एज यू नो दैट R upon S means R1 upon R2, that is equal to L upon 100 minus L. 40 upon 100 minus L is 60. Okay.
Now he is saying that null point is get shifted when you connect 16 ohm resistance in parallel with this R2. So 16 ohm here connected in parallel. Okay. So now let me calculate the value of this resistance now. So these two are in parallel. So RP, that is per product, मतलब 16 into R2. ओके ठीक है, प्रोडक्ट लेंगे ऊपर नीचे सम, सो नीचे हो जाएगा R2 प्लस 16. ओके, सो यहाँ आ गया. और यहाँ जो पुराने वाला है वो सेम है R1. सो यहाँ से आपका फिर दोबारा अब आपका नल पॉइंट पहले 40 पे आया था, यहाँ पे अब ये 50 पे शिफ्ट हो गया बिल्कुल सेंटर पे. तो यहाँ से यहाँ तक फिर 50 रहेगा ये, और आगे भी 50 रहेगा. ठीक है. सो अब नई सिचुएशन में जो नया रेजिस्टेंस है वो RP है, मतलब R2 की जगह अब RP है, बस इतना सा फर्क है. सो अब ये लगा दीजिए दोबारा जैसे ये लगाया था आपने. ठीक है, R1 अपॉन दिस RP. सो ये हो जाएगा R1 अपॉन RP. ओके, दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन 50, बिकॉज अब नल पॉइंट 50 पे शिफ्ट हो गया. सो 50 अपॉन इस तरह भी 50 बचेगा. सो R1 अपॉन RP इज 1. ओके, R1 upon RP is 1. Okay, R1 upon RP that is equal to 1. RP की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली. So when you substitute the value of RP, what you will get? You will get this R1 और ये ऊपर आ जाएगा R2 plus 16, ये वाली और 16 R2 नीचे आ जाएगा. ओके, that is equal to 1. ये होगा ना, RP की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये 16 R2 upon this 16 R2 अपॉन वाली चीज ऊपर चली जाएगी, चली गई. अब इसको आप यहाँ R1 R2 यहाँ से आपका आ जाएगा. सो यहाँ से ऊपर से भी हम कैलकुलेट कर दें तो ये आएगा 2 3, मतलब R1 आ जाएगा 2/3 R2. यहाँ से यदि मैं रखूँ तो R1 आ गया भाई 2/3 R2. ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए. सो यहाँ अब R1 की जगह तुम लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ R1 यू कैन राइट 2/3 R2. लिख दीजिए 2/3 R2 लीजिए इंटू R2 प्लस 16 अपॉन 16 R2. ओके, इज इक्वल टू 1. अब यहाँ से R2 निकाल सकते हैं इजीली. सो यहाँ से R2 निकाल देते हैं अब. ठीक है, सो ये R2 आपको आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 R2, तो आ जाएगा 2 R2 स्क्वायर प्लस 32 R2. ओके, इज इक्वल टू 48 R2. ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 R2 स्क्वायर is equal to 48 minus 32 16 R2. ठीक है, सो एक R2 यहाँ से कैंसिल हो गया. सो R2 यहाँ से आ गया आपके पास 16/2 दैट इज 8 ओम. अब R2 के लिए यहाँ पुट करेंगे तो R1 निकल आएगा. सो R1 हो गया, देयरफॉर R1 यहाँ से 8 पुट करिए यहाँ पे. सो ये आ गया 2/3 इंटू 8, मतलब 16/3 ओम. से ये पूछा था R1 की वैल्यू बताओ और R2 की वैल्यू बताओ, तो R2 यहाँ से मेरे पास आ गया 8 ओम और R2 इज इक्वल टू 8 ओम. जब मैंने यहाँ पुट किया तो R1 भी निकल आया और R1 इज 16/3 ओम. ठीक है, और एक आ गया 32. एट ओम. ठीक है, 16/3. ठीक है, यहाँ से भी कितना आ गया 2/3 इंटू 8, तो ये बन गया 16/3. यस, 8 आएगा यहाँ पे 8. सो ये था आपका क्वेश्चन, यहाँ 8 होना चाहिए. लेट मी चेक इट अगेन. सो यहाँ से तो सिंपल है कि 2. ठीक है, R1 हो गया 2/3 R2. ओके, दोबारा लगाइए इस इक्वेशन को. सो पहले तो ये रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा नेट.
तो ये आ जाएगा 16R2/R2 प्लस 16, बिल्कुल ठीक है। सो R1/RP भी ठीक है, सो R1 ठीक है। RP की वैल्यू है 16R2/R2 प्लस 16, बिल्कुल ठीक। 2/3 R2 पुट कर दिया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। सो यहाँ से R2 प्लस 16, 16R2, ओके। अब ये बन गया 2R2 स्क्वायर, बिकॉज इसको जब अंदर ले जाएंगे ना तो बन गया 2R2 स्क्वायर प्लस 32R2, बिल्कुल ठीक, ओके। अपॉन 48R2, 16 आती हैं 48 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बन गया ये 2R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16R2, एक R2 कट गया, R2 आ गया आपके पास 48 और यहाँ 32। सो ये है भाई, तो ये आना चाहिए, इसका 8 ओम आना चाहिए यहाँ पे, 8 ओम, ओके। ये था आपका, तो यहाँ पे करेक्शन है, 16 की जगह होगा 8 ओम, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे थे भी। 22 जनवरी की मॉर्निंग का जो पेपर था ना, उसमें सारी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस। तो टफ तो नहीं बोलेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन कैलकुलेशन इजी नहीं थी, लंबी लंबी कैलकुलेशंस थी, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर क्वेश्चन, इन अ गिवन फोर्स एट सेंटर ऑन 1 kg मास, बोलते हैं यहाँ 1 kg मास रख दिया, ओके। तो इसके ऊपर फोर्स जब लगा इस सिस्टम में तो F1 लगा, और जब इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया इसको और इसको, तो फोर्स F2 हो गया। तो उनका रेशियो निकालना है, ओके। और मुझे बताया कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि जो ये होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ मास जो होता है, तो M1 M2 डिस्टेंस ये सेम है, देखो ये सारी, तो ये नीचे वाली चीज R स्क्वायर वो तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मासेस, अब एक मास यहाँ 1 kg है, तो इसका मतलब एक सिर्फ M2 के प्रोपोर्शनल बचा। M2 ये है, ये जो आपके वर्टेक्स पे बैठे हुए मासेस हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि जितना आपका मास होगा उतना ही आपका ये फोर्स होगा। तो इस 1 kg, बिकॉज ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो 1 kg ड्यू टू दिस 2m इसकी तरफ ही खींचेगा, ऐसे कितने फोर्स से खींचेगा, बिकॉज यहाँ 2m आ गया इसकी जगह 2m, तो मतलब ऐसे बोल दो 2f से खींचा, ठीक है। तो इधर को कितनी से खींचेगा ये, बिकॉज इसमें भी अट्रैक्शन होगी, तो यहाँ मास m है, तो m है, तो फिर फोर्स f से खींचेगा इधर को, बिल्कुल ठीक। इधर को ये 4f से खींचेगा, बिल्कुल ठीक, और इधर को ये 3f से खींचेगा। अब बड़े ध्यानपूर्वक देखो कि ये 4f है और इधर को f है, तो नेट फिर इधर को बचेगा 2f, ठीक है। नेट जो बचेगा वो इस तरफ बचेगा 2f, ये ओके। और इन दोनों का जो नेट होगा, बिकॉज ये ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में, ये कम है, और इन दोनों का नेट भी इस तरफ कोई बचेगा कितना, 3 में से जब 1 चला जाएगा 3f माइनस f मीन्स 2f। सो मतलब इस पॉइंट से 2 वेक्टर निकल रहे हैं यहाँ से, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, ऐसे दोनों में एंगल ये 90 है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, ठीक है। तो यदि एंगल 90 है तो ये दिखना भी चाहिए ना यहाँ, ये देखो, तो ये आ गया एक और दूसरा ये आ गया, मैग्नीट्यूड में सेम है, f है 2f है और ये भी कितना है 2f है। तो रिजल्टेंट फिर क्या होगा, रिजल्टेंट बीच में से जाएगा ऐसे, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इनका रिजल्टेंट फोर्स। सो ये एंगल कितना बताया मैंने, 90 डिग्री, बिकॉज एंगल 90 होता है स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर एक्चुअली रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ, तो ये है स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे ये रिजल्टेंट निकाल लीजिए, 90 डिग्री एंगल पे होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होता है, ये होता है, मतलब ये हो जाएगा, यदि मैं इसको x बोल देता हूँ तो इसको भी x बोलना पड़ेगा, तो हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो रिजल्टेंट हो गया आपके पास 2x स्क्वायर, तो हो गया √2x। अब x किसको बोला है मैंने, x मैंने बोला है 2f को, तो ये आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट ये गया ऊपर को ऐसे, ये दिखा यहाँ पे, ठीक है, ये दिखा यहाँ पे, ओके। अब इनकी तरफ देख लो जो नीचे वाले हैं,
हाँ नीचे वाले तो हो गए बिकॉज ये सारा हो गया, लेकिन अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4m और 3m को एक्सचेंज करो। तो यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा, देखो ये फिर लेंथी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सो यहाँ से आपका ये बन गया अब डायग्राम। ये अब ये बोल रहा है कि यहाँ से ऐसे ये ध्यान लगाएं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है कि ये 3m और 4m इंटरचेंज होंगे, मतलब अपनी जगह बदलेंगे। यहाँ आ जाएगा 3m और यहाँ आ जाएगा 4m, नीचे वाले वैसे रहेंगे m इंटू 2m, ये जो भी है यहाँ पे। तो अब बड़े ध्यान से आप देखें तो यदि मैं 1 kg यहाँ रखता हूँ तो चारों मासेस की वजह से अट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से इस तरफ जाएगा, इसकी वजह से इस तरफ जाएगा, इसकी वजह से इस तरफ जाएगा, इसकी वजह से इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कितने फोर्स से जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बताया था मैंने। तो यदि इधर को f है m की वजह से, तो 2m की वजह से 2f हो जाएगा, इसकी वजह से 3f हो जाएगा, इसकी वजह से 4f हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बचा, ये 4f इधर को और इधर को f, तो नेट इधर को बचेगा 3f। 4f में से f क्या 3f ही बचेगा, इधर को 3f और इधर को 2f, तो इधर को बचेगा सिर्फ 3f माइनस 2f, दैट इज f। ये तो अब ये बना डायग्राम, इसमें देखो इस पॉइंट से अब ये एक 3f निकल रहा है इधर को, और इस पॉइंट से f निकल रहा है इधर को। ठीक है जी, सो ये पॉइंट फिर वैसे ही डायग्राम बनाएंगे, ये और ये 3f है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा, तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो जाएगा इधर वैसे। इसको मैं r डैश बोल देता हूँ, एंगल फिर 90 है बिकॉज ये एंगल 90 ही होता है ना। सो यहाँ से फिर यदि आप देखो ये f है, f ही तो है ये, तो फिर यहाँ से रिजल्टेंट बिल्कुल ऊपर की जैसे पहले किया r डैश निकाल देते हैं। तो r डैश को ही इसने f2 बोला है, ये देखो f2 लिख दो कोई बात नहीं, f2 हाँ लिख सकते हैं f2, और इसको उसने f1 बोला था। ठीक है, तो मतलब ये f1 हो गया। ठीक है, तो ये f2 लगे निकालने, अब f2 हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा बोलो। फिर मैं इसको यदि x बोलता हूँ तो इसको क्या बोलूँगा 3x। तो बात वही है कि x स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर का अंडर रूट है ना, ये होता है ना, आगे प्लस 2ab cos 90 0 हो जाएगा। सो आपके पास ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का रूट हो गया 2 और ये बचेगा 2x, और x किसको बोला था, x बोला था f को, बचेगा 2f। तो ये आ गया आपका f2। ओके, दिस इज योर f2। अब ये पूछ रहा है कि f1 अपॉन f2 निकालना है, सो f1 अपॉन f2 हो जाएगा, f1 कितना है मेरे पास 2 अंडर रूट 2f, और f2 मेरे पास कितना है 2f, f से f कट गया, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, f1 अपॉन f2 2 बाई अंडर रूट, कैलकुलेशन देख लेते हैं दोबारा, स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया 2x ही होगा। ठीक है, 2f ही होगा बिल्कुल ठीक, 2f होगा ये f1 अपॉन f2, 2 अंडर रूट 2 आ गया ना, और x आ गया 2f। ठीक है, 2 अपॉन 2, तो ये बन गया, फिर लिख देता हूँ वैल्यू 2 अंडर रूट 2 f अपॉन 2f। इस 2 को मैं ऐसे लिख दूंगी यदि, तो क्या होगा ऐसे, f से f कट गया, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, तो नीचे मेरे पास बचा 2 अपॉन अंडर रूट 2। ये जो 2 था ना, ये 2, इसको मैंने अंडर रूट 2 लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो अभी बोल रहा है आंसर आ रहा है 2 अपॉन अंडर रूट अल्फा। ठीक है, 2 अपॉन अंडर रूट अल्फा। ठीक है, सो 2 अपॉन अंडर रूट अल्फा, तो इन प्लेस ऑफ अल्फा आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। ठीक है,
तो ये आ जाएगा यहाँ 2 होना, यहाँ भी गलत है 2, तो ऑप्शन 1 आएगा इसमें। ओके, सो वही इसमें कैलकुलेशन में मेरे को लग रहा है कहीं गलती की है शायद हमने। देखो यहाँ की है गलती, होल स्क्वायर होता है ना, यहाँ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 + 1 हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा √10 और आगे आ जाएगा x, ठीक है। तो ये आ गया F2, तो F1/F2 निकाल लेते हैं। F1 हमारे पास आया था 2√2 F, और F2 अभी आया हमारे पास √10, F से F कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10। ओके, तो ये कट के आ जाएगा 2, तो और नीचे आ जाएगा 2 से 10 कट गया, तो ये बचा √5। तो ये बोल रहा है जो आंसर है आपका वो दिया हुआ है 2/√α, तो अल्फा की जगह कौन बैठा हुआ है 5, सो अल्फा आ जाएगा 5। सो ओके, अभी 2 नहीं होगा, यहाँ पे 5 ही होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, लेकिन 3x का होल स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9x स्क्वायर हो गया, तो बन गया 10x स्क्वायर एंड √10x बन गया, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास सिंपलेस्ट ऑफ अल्फा यू विल गेट 5, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, तो इसको यदि थोड़ा नीचे करें ऐसे, तो ये यहाँ से बॉब है ये, तो यहाँ से ऐसे किया होगा इधर को ना, ठीक है। सो इसका यहाँ बना देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये लिखा है देखो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पॉजिटिव से आती है नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है। तो यदि ये बॉब पे चार्ज Q है तो इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगेगा Q ही, पॉजिटिव है तो नेगेटिव तरफ ही खींचेगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स लगना है। और इसका मास यदि m है तो इसका वेट नीचे को हो जाएगा mg, ठीक है। सो दो वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, फिर आपका पैरेललोग्राम लॉ लग गया, तो रिजल्टेंट होगा आपका ये वाला, ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आ जाएगा इसका। 90 डिग्री इनके बीच एंगल है, और टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, तो फिर टेंशन भी आपका यहाँ से वही आ जाएगा जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इसमें फिर वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका स्क्वायर नीचे वाले का कर लो पहले, m² g² प्लस इसका स्क्वायर q² e² होल रूट, तो यही आपकी टेंशन होगी, यही आपकी टेंशन होगी। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों का, दैट विल बी इक्वल टू T, दिख रहा है डायग्राम से। सो इट इज ऑप्शन 2, सिंपल था ये। यदि हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका डॉपलर इफेक्ट पे। ओके, सो बोल रहा है कि डिटेक्टर बी, हाँ डिटेक्टर मीन्स ऑब्जर्वर, जैसे हमारा होता है तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है A to B एंड ऑब्जर्व करता है फ्रीक्वेंसीज डिफरेंस बाय 10 हर्ट्ज, सोर्स यहाँ पे है, ठीक है, साउंड का सोर्स ये है, और इस साउंड F0 फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। स्पीड ऑफ डिटेक्टर जो है, तो स्पीड ऑफ डिटेक्टर जो है वो आपका v वेलोसिटी ऑफ साउंड का 0.35 है, ठीक है। सो ये पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ सोर्स की कितनी है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दिया हुआ है, जब ये A पॉइंट से B की तरफ गया ना ऑब्जर्वर या डिटेक्टर, तो इसने जो यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी सोर्स से, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखा उन साउंड वेव्स का उसने 10, ठीक है। तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो ये बन गई आपकी डायग्राम, ये आ गया आपका सोर्स, ये आपका हो गया यहाँ से 160, तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 160 और ये है 90, ये है आपका पॉइंट बी
और ये है ए, ऑब्जर्वर ए से बी की तरफ गया है। ओके, सो यदि मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ऐसे और इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, तो फिर यहाँ पे बड़े ध्यानपूर्वक यदि आप देखें, दिस इज 120, दिस इज 160, दिस इज 90, दिस इज एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। सो इसमें यदि हम बड़े ध्यानपूर्वक देखें तो ये आपका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। सो पाइथागोरस ट्रिपलेट में आपको पता है कि ये एंगल जो रहते हैं ना, तो ये दूर है तो ये एंगल होगा 37 डिग्री, दिस एंगल विल बी 30। पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक एंगल 37 होता है, तो ये वाला जो होगा 53 होगा। यहाँ भी 12 और 9 बन गए, तो ये बन जाएगा आपका कुछ, ये एंगल जो होगा ये होगा 53 डिग्री, और इधर वाला हो जाएगा 37 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा इधर 53 डिग्री। सिंपल, अभी जैसे हम बोलते हैं ना ये ट्रायंगल है कोई जैसे, सो जब हम बोलते हैं कि ये साइड 5 मीटर है, ये साइड आपकी, ये एंगल यदि आपका 37 डिग्री है, तो फिर आपकी ये साइड 4 मीटर होगी पक्का, और ये साइड होगी 3 मीटर, और ये एंगल 90 है, तो फिर आपका ये जो है ये 53 ही बचेगा। उस तीनों का सम आप चेक कर लो, 180 हो गया। तो इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट में तो छोटी क्लासेस में सिखाते हैं ना कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इधर भी 25 आ गया और इधर भी 25 आ गया। तो ऐसा हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 25 25। इसका मतलब याद रखिए कि एंगल 5 और 4 के बीच जो होगा वो 37 होगा, तो इधर वाला कितना बचेगा 53, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही देखो, ये यदि 160 है, 120 है, तो फिर ये आप लगा दीजिए यहाँ से, तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा h, तो h हो जाएगा ये 160 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ये आ गया, और उसका रूट, तो ये आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास कितना है, 160 है, ये 120 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 200, 200। तो इसका मतलब ये भी एक ट्रिपलेट बनता है, देखो 200, 160, 120, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। जैसे यहाँ बना था ना 5 4 3 का, तो वैसे यहाँ भी ऊपर भी वैसा बनेगा। ये 12 है, ये 9 है, तो सच्ची में ये 130 होगा, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन गया, 130, 120, 90। तो इनमें सब में एंगल ऐसे रहेंगे ये, ठीक है। तो ये 4 5 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं आपसे यहाँ से पूछूं अब कि अब हो गया क्वेश्चन, फॉर्मूला चाहिए मैं और हो जाएगा क्वेश्चन, देखो। सो फ्रीक्वेंसी जब ये यहाँ से डिटेक्टर चलेगा, ऑब्जर्वर यहाँ से जब मूव करेगा और वो सोर्स के प्लेन की तरफ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव जो ऑब्जर्व करेगा वो होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0, ये जो थी यहाँ पे f0 थी यहाँ पे, ये वाली, इनटू 1 तरफ जा रहा था, यहाँ प्लस होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यदि इधर को डिटेक्टर है यहाँ डी लिख दो, वेलोसिटी डिटेक्टर यदि इस तरफ जा रहा है ना वैसे, तो इस लाइन पे उसका कंपोनेंट हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, सो ये हो जाएगा वी डी कॉस 37 डिग्री, बिल्कुल ठीक, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और जब बी की बात करेंगे तो बी सोर्स से तो वापस जा रहा था, सोर्स का जो प्लेन था उससे तो वापस जा रहा था, जब बी पे पहुंचा, ठीक है, तो फिर उसमें माइनस साइन हो जाता है, यहाँ 1 माइनस, नीचे वी रहेगा, ये वाला, तो इधर को यदि वी डी है तो इस तरफ हो जाएगा वी डी कॉस 53, वी डी कॉस 53 डिग्री। सो ये आपके पास हो जाएगा, देखो f0 इंटू 1 प्लस कॉस 37, यहाँ से कॉस 37, यहाँ से मैंने बताया कि ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 37 वाली में बेस होता है ये, तो बेस कितना जाता है 4, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 के, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 के, तो यहाँ से कॉस क्या होगा, कॉस 37 4/5, तो हो जाएगा 4/5, वी डी की वैल्यू पूरा, बी डी जो कितना है v/35, ठीक है, और cos 37 की वैल्यू मैंने बताई 4/5, ठीक है जी, तो ये आ गया।
वैसे ही इसको कर लेते हैं एफ नॉट 1 माइनस वही वी डी की वैल्यू v/35 और फिर cos 53 डिग्री इस ट्राइंगल से, तो 90 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ 4 के, सॉरी जब इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये हो जाएगा छोटी साइड 3 और ये हो जाएगा इधर 4 और इधर हो जाएगा 5। यदि तुमने ये नहीं करना है नंबर ना, तो ये बड़े बड़े नंबर लिख लो यहाँ, तो भी ये सेम ही आएगा। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना आएगा, देखो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 ये आ गया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस उसने 20 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कि जो एफ ए माइनस एफ बी है वो किसके इक्वल है 20 के। तो एफ ए माइनस एफ बी करिए, यहाँ से आसानी है, तो यहाँ से यदि आप करोगे तो यह आ जाएगा एफ नॉट अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 20। तो एफ नॉट सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव्स की वो आ जाएगी 225 इंटू 20 एंड दैट विल बी 500। एफ नॉट अपॉन 20, हाँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना दिया था 10 है, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 है, ये 10 है। ठीक है, तो यदि ये 10 है तो फिर 250 आ जाएगा यहाँ से हर्ट्स। तो ये था, देखो लेंथी कैलकुलेशन कहीं कुछ इसमें नॉलेज चाहिए तभी ये क्वेश्चन होना था। इट वाज एक्चुअली ये टफ क्वेश्चन, इसको हम आसान नहीं मानेंगे, आसान तो है लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, सो इसमें वीडी डिटेक्टर की जो वेलोसिटी थी वो साउंड की वेलोसिटी का अपॉन 35 थी, और फिर ये डायग्राम मैंने आपको समझा दी। यहाँ से सिर्फ यदि वो इस तरफ मूव कर रहा है तो जिस तरफ सोर्स है उस तरफ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कंपोनेंट होगा कॉस वाला, cos 37 ये लिखा। जब यहाँ पहुंच गया तो सोर्स की तरफ जो तो कंपोनेंट था वो हो जाएगा फिर कॉस कंपोनेंट होगा cos 53। तो ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जब वो ए से बी गया, जब वो ए से कहाँ गया बी, तो उसने फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखा कितना 10, और इन दोनों को यदि मैं माइनस करूंगा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। इसका आएगा एफ नॉट अपॉन 25, सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ नॉट 250 हर्ट्स। सो जो सोर्स साउंड वेव्स एमिट कर रहा था उनकी फ्रीक्वेंसी थी 250 हर्ट्स। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है भी ये, और इस क्वेश्चन में हम अब पढ़ते हैं इसको, ये आसान ही क्वेश्चन है। सो इसमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा। ये बोला कि डिस्क, ये दोनों डिस्क हैं भी, ठीक है ओके। सो ये इसका सेंटर ऑफ मास आ गया इस डिस्क का, और ये आ गया सेंटर ऑफ मास, इसका 5 kg मास है और इसका 10 kg मास है ओके। सो 10 kg। तो बोल रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू कॉमन टेंजेंट। ओके, कॉमन टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये पैरेलल टू प्लेन है, तो यहाँ से भी आपको पैरेलल खींचना पड़ेगी एक लाइन, और यहाँ से भी पैरेलल खींचनी पड़ेगी ऐसे। तो वही अबाउट डायमीटर जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/4। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस r1 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये R2 ये है आपका 50 सेंटीमीटर, काफ़ी ज़्यादा है ओके। बस गिवन डाटा हो गया, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगेगा, हो गया। सो भी पहले तो एक डिस्क 1 की बात करते हैं इस डिस्क की। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पैरेलल एक्सिस का थ्योरम में लगाना है, तो फिर आपको जो सेंटर से एक्सिस गुजर रही है इसके उसके अबाउट तो पता होना चाहिए, तो वो तो डायमीटर है, तो ID हो गया वो, ठीक है। और फिर
तो वो क्या बोलती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट में आई डैश बोल देता हूँ, सो आई डैश होगा, पहले डिस्क की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा सेंटर से एक्सिस गुजर रही है आई डी प्लस इस डिस्क का मास, तो m1 बोल देते हैं, ठीक है। तो m1 r1 स्क्वायर, एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, लगी पैरेलल एक्सिस होगी तो आई डैश कितना हो गया यहाँ से, आई डी कितना होता है m1 r1 स्क्वायर, मैंने बोला अपॉन 4 होता है, और ये बन गया m1 r1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरी डिस्क की बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा आई डबल डैश कर लो, कोई बात नहीं, तो आई डबल डैश क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम, इसके अबाउट आई डी बोल देते हैं, आई डी डैश बोल देते हैं, आई डी डैश, ठीक है, प्लस मास इसका m2 r2 स्क्वायर, लगी पैरेलल एक्सिस की थ्योरम, और आई डी डैश कितना होता है, आई डी डैश होता है m r2 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस m2 r2 स्क्वायर, r2 आई, ठीक है। तो टोटल निकाल दो दोनों सबको, इसको ऐड कर दो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दूसरी के लिए उनको ऐड करिए, 1 + 2 कर देते हैं तो आंसर आ रहा है, सही बनेगा। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ, m1 हाँ वैल्यूज पुट करते हैं भाई, 5, फिर कैलकुलेशन है 5 इंटू, अब देखो उसने मीटर में कर दिया, नीचे सेंटीमीटर में रेडियस दी जा रही है, सो m1 आपका 5 r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर मीन्स 10.1 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 0.1 का स्क्वायर, ओके, अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आ जाते हैं m कितना है भी इसका, m है इसका 10 इंटू r2 कितना है 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100 मीन्स सेंटीमीटर बनाइए ना, 50 सेंटीमीटर के, सो 0.5 है ना का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 प्लस 10 इंटू r2 फिर आ गया 0.5 का होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा भाई। सो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर थोड़ा सा कर ही लेते हैं भाई फिर, है ना। सो अब देख रहा है आपको कि यहाँ 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन है, 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 1/4 प्लस 1, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 10 कॉमन है और 0.5 का होल स्क्वायर कॉमन है, 1/4 प्लस 1, तो भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये सिंपल आ रहा है 51/16, ठीक है, kg यूनिट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो आपको इसके लिए लगाना है, फर्स्ट डिस्क के लिए, फिर सेकंड डिस्क के लिए लगाना है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल, वॉल्यूम इंक्रीजेस 8 टाइम्स, ओके, एडियाबैटिक कांस्टेंट वैल्यू टू फाइंड गामा, जो CP/CV होता है, ठीक है। तो TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक इक्वेशन लगाएंगे। सो पहले टेम्परेचर ये है T मान लो, V ये आ गया, और तो दूसरे केस में टेम्परेचर T/4 हो गया, टेम्परेचर रिड्यूसेस T की जगह लिखो T/4, ओके, वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स हो गया, तो मतलब 8V लिख दो, गामा -1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, गामा निकाल लो, तो ये आ गया देखो TV गामा -1, और यहाँ बचा आपके पास 8 की पावर गामा -1/4, तो ये तो खत्म हो गया, इधर बचा 1 इक्वल टू, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ 2 की पावर 3, और अंदर आ गया गामा -1 अपॉन 2 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आएगा 2 की पावर 3 गामा -1 इक्वल टू 2 की पावर 2, पावर्स को कंपेयर कर लो, तो बन गया 3 गामा -1 इक्वल टू 2, तो बन गया 3 गामा इज इक्वल टू कितना बन गया है, 3 गामा -3, ब्रैकेट खोलनी थी, यहाँ 3 है, 3 गामा इज इक्वल टू बन गया 5, और गामा इज इक्वल टू 5/3, ये 3, तो आसान था ये एक और देख लेते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि
6 चार्जेस हैं, 4 प्लस क्यू है, ढूंढो 4 क्यू कहाँ कहाँ है। ये देखो अभी पूछ रहा है कि सर्कल पे प्रेजेंट है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, एंड सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे निकालनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आपको पता है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ +1 रखेंगे, आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, इस चार्ज की वजह से भी इस तरफ जाएगा। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, यदि ये 5 है तो ये भी 5 है, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगी, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ओके, अब आपके पास बचा कि ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ ही होगी ये, और इस चार्ज की कहाँ होगी, इस चार्ज की होगी इसकी तरफ, और यहाँ रखेंगे तो इसकी कहाँ होगी, इस चार्ज की होगी इसकी तरफ ही, और इसकी कहाँ होगी, वो भी इस तरफ ही होगी। तो यदि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ई है तो इसकी भी ई होगी भाई, ये देखो, ठीक है। सो अब देखो आप इस चार्ज की वजह से देखो तो इस चार्ज की इसकी तरफ ही होगी, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही होगी, मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये भी ई होगी, ये भी ई होगी, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब एक पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे हैं, एक ऐसे निकल रहा है और दूसरा ऐसे निकल रहा है, ठीक है। ई प्लस ई हो गया 2e ये वाला, और ये भी हो गया 2e, तो वही एंगल इनके भी 60 है। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट ये निकलेगा ऐसे। तो रिजल्टेंट फील्ड निकालिए जरा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन, इसको मैं x बोल देता हूँ, तो ये भी x ही होगी। तो x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 60, cos 60 होता है हाफ, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर इंटू हाफ, ये बन गया अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया 3x स्क्वेयर। तो r बन गया आपके पास 3x स्क्वेयर अंडर रूट, r बन गया अंडर रूट 3, और आगे बचा x की वैल्यू मैंने क्या बताई है 2e, यहाँ 2e भर दो अब, तो r हो गया आपके पास अंडर रूट 3 इंटू 2e। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की क्या होती है, डिस्टेंस r दी हुई है डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंडर रूट 3 टू k क्यू अपॉन r स्क्वायर ये, और डायरेक्शन नेट फील्ड की है इस तरफ ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन लिखनी है तो ये माइनस x डायरेक्शन में आई, नेगेटिव x डायरेक्शन है माइनस आई कैप, तो फिर ये आंसर आ चुका है देखो भाई। सो आपके पास आ जाएगा ये k की वैल्यू भर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बन गया अंडर रूट 3 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और माइनस आई कैप हो गया उसका डायरेक्शन, नेट फील्ड ये बन गई वेक्टर, रिजल्टेंट फील्ड हो गई, ठीक है। सो ये आ गई आपके पास 2 से ये 4 कट गया ये, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3, ये आ गया q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और आगे आ जाएगा r स्क्वायर और माइनस आई कैप ये। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो सिंपल था भाई, ये वेक्टर्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन लगेगा और सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 11, तो इसमें सिंपल है कि ये गोल्ड फॉयल होता है आपका डिस्टेंस अप्रोच जस्ट अप्रोच रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ना, तो ऐसे, तो जैसे अल्फा पार्टिकल सेंटर की तरफ हिट करता है ना ऐसे, तो फिर यहाँ से वापस हो जाता है भैया ना, ये सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसके ऊपर चार्ज होगा Zd, अल्फा पार्टिकल जो आ रहा था इसके ऊपर है 2e, ठीक है। तो ये कितना नज़दीक पहुंच पाया ये r0, तो इस पॉइंट P पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज 2e इंटू Ze अपॉन क्या भाई, ये डिस्टेंस r0 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से r0 निकालना कुछ है आपको, r0 निकालने को बोल रहा है, ठीक है।
सो भी आर नॉट यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। तो अगले स्टेप में इस आर नॉट को मैं यहाँ लिख दूंगा, इसको एम यहाँ रख दूंगा, तो आर नॉट निकल चुका है, ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी सीधी दी हुई है, तो हाफ एम बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाने हैं, वो अपनी वैल्यू यहाँ भरनी है, ठीक है। और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10⁻9 हो गई, ठीक है। जेड की वैल्यू इसने दी हुई है गोल्ड का एटॉमिक नंबर, तो जेड कितना होता है 79। सारी वैल्यूज भरोगे तो आर नॉट यहाँ से निकल आएगा, और आर नॉट होगा आपका ये, ठीक है जी। ये देख लेते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एस्केप वेलोसिटी को बोल रहा है, होती है √2gm/r, ये होता है ना। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के रूप में लिखना है, तो मास को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। m/r ही बचा है प्रोपोर्शनल में, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 πr³, डेंसिटी हो गया रो, और अपॉन r ये। सो ये बचेगा आपके पास, प्रोपोर्शनल लेते हैं, प्रोपोर्शनल क्या बचा v, r की पावर 2 बचेगा, इसका मतलब √ρ बचा, और r साइड में रह गया, ठीक है। तो ये बना फॉर्मूला करने के लिए। अब ये बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी निकालो उस प्लैनेट NET, ठीक है। तो ये जनरल वेलोसिटी एक प्लैनेट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला, दूसरे पे v डैश बोल देते हैं। जहाँ वेलोसिटी, जहाँ बोल रहा है कि जो आपकी डेंसिटी और रेडियस दोनों 10% है ए का, तो डेंसिटी रो डैश जो है वो 10% है रो का, मतलब वो रो बटा 10 है ना, और रेडियस भी यही है 10% ऑफ शुरू वाला, मतलब r बटा 10। सो भाई ये बन गया फॉर्मूला, रो डैश और आगे r डैश। तो रो डैश कितना है, रो/10 लिख दो, रो/10 अंडर रूट। r डैश कितना है, r/10। तो यहाँ से क्या निकल के आया ये, तो इसको लिख सकते हो v डैश इक्वल टू आ गया ये √ρ को साइड में रखो। अब आपके पास बचा एक 10/√10, तो इसको तुम लिख सकते हो √10 कर लो ऊपर, नीचे √10, और रो आर जो शुरू वाली वेलोसिटी है, ये वाली तो शुरू वाली है ये। तो इसका मतलब हो गया कि कौन सी की पूछी है, रो/10 √ρ, ठीक है। ये तो v डैश डेंसिटी एंड रेडियस 10% ऑफ दैट, ठीक है। 10% ऑफ रो/10, ठीक है। 10 ये बन गया आपके पास, नीचे है 10 ये है ना 1/√10, और ये नीचे वाला 10 है इधर ये। तो ये आपके पास ये बन जाएगा 10/10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको जो वैल्यू थी वो v की वैल्यू यहाँ पे देखो ना, ये आ गया 10√10, ये आ गया v। तो ये v की वैल्यू जो है आपको वो ऊपर गिवन है ये 10 किलोमीटर, सो 10 किलोमीटर पर सेकेंड, नीचे क्या है 10/10। सो ये 10 से 10 कट गया, सो आ जाएगा 1/√10 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन 1 आ जाएगा। सो अभी इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, यहाँ शुरू करेंगे। ओके देन।